Hello friends, I am Professor Rajmohan Nair, Assistant Professor at JG College of Commerce. I teach accountancy at both the levels BCom and MCom. Today in this session, we are going to cover certain aspect of consignment accounting with the numerical which is asked many times in the university. So let's discuss what consignment accounting is. Consignment accounting is in the syllabus of SEM 1 Accountancy 1 subject. So what do you mean by word consignment? It is a type of business wherein business enterprise does not have any resources to open a branch in a distant city or in a foreign country, but they sell their product through some experienced dealer there. इससे क्या मालूम पड़ता है कि एक पर्सन जो मान लो कि अहमदाबाद में हो और उसे अपना बिजनेस एक्सपांड करना है मुंबई में, तो क्या करेगा वो? मुंबई के बारे में उसको पता नहीं है, मुंबई के मार्केट के बारे में उसे पता नहीं है, लेकिन वो वहाँ पे भी बिजनेस करना चाहता है, तो वो वहाँ पे एक ऐसा बंदा देखेगा जिसको वहाँ के मार्केट कंडीशंस के बारे में पता है एंड उस बंदे के साथ में कांटेक्ट करेगा एंड उस बंदे को बोलेगा कि मुझे मुंबई में बिजनेस करना है एंड दैट अदर पर्सन फ्रॉम द मुंबई विल वर्क ऑन बिहाफ ऑफ अस. वो मुंबई के मार्केट में हमारे प्रोडक्ट सेल करेगा ऑन बिहाफ ऑफ अस. That particular business is known as consignment. Consignment business is basically a type of business where you want to expand your business, but with that mentality that we don't know what happens or what is the main consumer behavior of that particular area or a distant market. So we can say that there is a relationship established between the two parties which are involved in this particular entire business, that is the party who is sending the goods and the second person who is accepting the goods and will sell in the distant market on behalf of us. The person who is sending the goods is known as consignor and the person who is selling our products in the other distant market is known as consignee. Now it is very simple that a person who is sending the goods is a person who act as a principal, who act as a person who is main person and the second person works on behalf of us. दूसरा बंदा पहले पर्सन के बिहाफ में काम कर रहा है तो हम कह सकते हैं वो एजेंट हो गया हमारा. सो यहाँ पे प्रिंसिपल एजेंट वाला रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है इस केस में. Consignment accounting, through this picture you can see a simple diagram I have shown, जिसके अंदर कंसाइनर है जो सेंड कर रहा है गुड्स किसको? कंसाइनी को, जो दूसरे डिस्टेंट मार्केट में होगा और वो डिस्टेंट मार्केट में हमारे बिहाफ में, दैट इज कंसाइनर के बिहाफ में क्या करेगा? गुड्स को सेल करेगा उस मार्केट में. क्या ये फ्री में करेगा? नो, द आंसर इज नो. कंसाइनी को हमको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, कुछ कंसीडरेशन देना पड़ेगा. दिस कंसीडरेशन इज नथिंग बट कमीशन. हम उसको कमीशन देंगे फॉर द वर्क ही हैज डन ऑन बिहाफ ऑफ अस. वो हमारे लिए उसके मार्केट में सेल कर रहा है जिसके लिए हम उसको रिवॉर्ड करेंगे. एंड हियर दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन दैट देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंसी इन केस ऑफ कंसाइनमेंट बिजनेस. Now, a very important aspect that is accounting. हमने अभी तक देखा कंसाइनमेंट क्या है, लेकिन अब इस कंसाइनमेंट को हम किस तरह अकाउंट्स में ट्रीटमेंट करेंगे, अकाउंट्स में किस तरह इसका इफेक्ट लाएंगे, इसके लिए सबसे पहले जानना पड़ेगा कि कितने लोगों के किताब बनते हैं. तो किताब दो जन के बनते हैं, दैट इज कंसाइनर एंड कंसाइनी. दे आर द पार्टीज टू दी पर्टिकुलर बिजनेस, दे आर द पार्टीज इन्वॉल्व इन दिस ट्रांजैक्शन. Hence, there will be two books of accounts, one would be of consignor and one would be of consignee. In examination, in university, the books of consignor is asked the most, and in the books of consignor, there are three ledger accounts that we have to prepare. The first ledger account is consignment account, the second is consignee account, the third is goods sent on consignment account. Can I say these three are the main ledger accounts which you have to prepare for securing 14 marks, because the weightage of one numerical from the consignment accounting this chapter is of 14 marks. So you will fetch a 14 marks if you complete this particular sum.
covering all the three ledger accounts. Now we are going to solve this sum which is asked in university for n number of times, and in this sum we have to prepare consignment account, consignee account and goods sent on consignment account. These three ledgers we have to prepare for such numericals. Now if we talk about consignment account is same like trading and profit and loss account. जैसे हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं फॉर सोल ट्रेडर, जिसमें हम ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, उसी तरह हमें यहाँ पे भी सारे ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, एक्सपेंसेस एंड इनकम को रिकॉर्ड करना है. दिस पर्टिकुलर अकाउंट विल फेच अस द प्रॉफिट दैट वी अर्न फ्रॉम द कंसाइनमेंट बिजनेस. So let us start with this particular numerical. The numerical goes like this. Rajesh Traders of Rajkot consigned 20 oil engines to Mitesh Brothers of Mumbai at a cost price of rupees 40,000 each on 1/4/2017. From this particular line we come to know that कि राजेश ट्रेडर कंसाइनर है और मितेश ब्रदर्स वो कंसाइनी है. तो हमें राजेश ट्रेडर्स के किताब में कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, कंसाइनी के जगह पे मितेश ब्रदर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा. द फर्स्ट लाइन सेज 20 ऑयल इंजिन कंसाइन किए हैं राजेश ट्रेडर्स ने मितेश ब्रदर्स को. मतलब मैं कह सकता हूँ कि दिस पर्टिकुलर गुड्स इज सेम लाइक ओपनिंग स्टॉक. तो ओपनिंग स्टॉक को हम ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड रिकॉर्ड करते थे, वैसे ही हमें कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना रहेगा टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. और यहाँ पे 20 ऑयल इंजिन्स दिया हुआ है, 20 ऑयल इंजिन्स और कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 20 इंटू 40,000. सो इट कम्स टू 8 lakhs. So this is nothing but same like opening stock. Then after, Rajesh Traders paid rupees 4,800 for freight and insurance. So now we are preparing the books of accounts of consignor. मतलब मैं खुद राजेश ट्रेडर हूँ तो मेरे हाथ से एक्सपेंस हो रहा है, तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, पेमेंट करूँगा, सो दैट मेरे हाथ से कैश जाएगा. द कैश गोज आउट ऑफ द बिजनेस, हेंस वी विल रिकॉर्ड दिस एक्सपेंस इन द कंसाइनमेंट अकाउंट विच एक्ट्स एज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो वी विल राइट हियर ऑन द डेबिट साइड टू कैश अकाउंट. अब टू कैश अकाउंट के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे 4,800 रुपीज़ जो हमें खर्चा करना पड़ रहा है, हमारे जेब से गया है. सो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रेट एंड इंश्योरेंस. नाउ ऑन 1/4/2017 राजेश ट्रेडर्स ड्रू अ बिल ऑफ रुपीज 4 lakhs फॉर 3 months ऑन मितेश ब्रदर्स. नाउ ये पूरे कंसाइनमेंट बिजनेस के अंदर राजेश ट्रेडर्स क्या कर रहा है, वो एक बिल बना रहा है. दिस इज सेम एज कॉमर्शियल बिल, दैट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज. यहाँ पे राजेश ब्रदर्स बिल्स ड्रॉ कर रहा है मितेश ब्रदर्स पे, जिसकी एंट्री अगर आपको याद है हम 11-12 स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ चुके हैं. दैट इज़ हमारे पास में क्या आ रहा है, हमारे पास में बिल्स आ रहा है और अल्टीमेटली हम जो मितेश ब्रदर्स के पास से हमें पैसा मिलना चाहिए था एक कंसाइनमेंट के बाद, उसका हम पहले से अभी से ड्यू कर रहे हैं. तो एंट्री वुड बी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट रुपीज़ 4 lakhs टू मितेश ब्रदर्स. तो हमें कंसाइनी के क्रेडिट साइड में लिखना रहेगा बाय बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि ये बिल्स हमने ड्रॉ किया और हमें वापस मिला. द अमाउंट इज 4 lakhs रुपीज़. which was immediately returned by the latter duly accepted. Rajesh Traders discounted this bill in a bank on 1/5/2017. Now this is very important. हमने बिल ड्रॉ किया था 1/4/2017 को और उसकी टोटल मैच्योरिटी पीरियड क्या थी, 3 months की. और एज यू नो दैट इन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट
राजेश ट्रेडर डिस्काउंट कर रहा है ये पर्टिकुलर बिल ऑन 1/5/2017। दैट मीन्स एक महीने के बाद में राजेश ट्रेडर बैंक के पास में जा रहा है और बिल डिस्काउंट कर रहा है। तो मैं अब कह सकता हूँ कि बैंक इसे डिस्काउंट करके हमें कैश देगी तभी के तभी। तो कैन आई से बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट करते थे हम 11th स्टैंडर्ड में जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़े हैं और बिल डिस्काउंटिंग की एंट्री की है तो हमने डिस्काउंट को डेबिट किया है। एंड 2 हम करते थे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। नाउ इन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे जितना अमाउंट हमें मिलेगा काट के बैंक के पास से, उसके साथ साथ हम डिस्काउंट अकाउंट को जब डेबिट कर रहे हैं उसके जगह पे हम क्या डेबिट करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, बिकॉज वी आर अल्टीमेटली रिकॉर्डिंग ऑल द एक्सपेंसेस इन द कंसाइनमेंट अकाउंट। सो कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे 2 बिल्स रिसीवेबल अकाउंट और ब्रैकेट में हम लिखेंगे डिस्काउंट। सो नाउ डिस्काउंट कितने महीने का कटेगा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट राइट नाउ। दैट इज 4 लाख का बिल ड्रॉ किया हुआ है और कितने मंथ्स का इंटरेस्ट डिस्काउंट कटेगा। डिस्काउंट कितना दिया हुआ है रेट, 12% इन द सम। दैट इज हम कह सकते हैं 4 lakhs इंटू 12%। और कितने मंथ्स के लिए, तो जितने मंथ्स के लिए ये पर्टिकुलर बिल बैंक के पास में रहा हो। तो मैं कह सकता हूँ कि 3 महीने का मैच्योरिटी वाला बिल था जो मैं 1 महीने के बाद जा रहा हूँ बैंक के पास में, तो अब कितना महीना बैंक के पास में रहेगा ये बिल, 2 मंथ्स के लिए। तो 2 डिवाइडेड बाय 12, द आंसर ऑफ द डिस्काउंट विल बी 8,000 rupees. Now moving forward, Mitesh Brothers is entitled to get 5% general commission and 2% del creditor commission. अच्छा, कमीशन ये पूरा कंसाइनमेंट बिजनेस में हम कंसाइनी को क्या देते हैं, दैट इज कंसाइनर विल पे अ कमीशन बेस्ड ऑन इट सेल्स। जितना सेल्स कंसाइनी करता है उसके बेस में कमीशन मिलता है। ये टॉपिक को हम तब वापस याद करेंगे जब हम सेल्स का रिकॉर्ड करेंगे। मूविंग फॉरवर्ड टू, ऑन 31st August 2017, Mitesh Brothers sent an account sale and bank draft for the amount due from him. He reported in the account sale that first, he paid rupees 3,000 for octroi, 3,000 for insurance and 10,000 for advertisement. Now make sure अकाउंट सेल एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कंसाइनी कंसाइनर को देता है, जिसके अंदर कंसाइनी ने जितने भी एक्सपेंसेस किए हैं, जितने भी एक्टिविटीज़ की है, जितना भी सेल उसने किया है, जितना उसको कमीशन चाहिए, कितना अमाउंट उससे उसके पास से हमें लेना है, ये सारी डिटेल अकाउंट सेल के अंदर मेंशन की होती है। जिसमें से सबसे पहला उसने बताया है कि मितेश ब्रदर ने कितने खर्चे किए हैं, और वो तीनों के 3 खर्चे जो है वो हम ऑब्वियसली कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे। लेकिन हम यहाँ क्या लिखे, टू कैश अकाउंट, नो, दिस एक्सपेंस इज नॉट बोर्न बाय मी, इट इज़ बोर्न बाय मितेश ब्रदर्स। कैन आई से ये मितेश ब्रदर्स ने बोर्न किया है, बट अल्टीमेटली वो किसके पास से वसूलेगा, मेरे पास से वसूलेगा। तो टू मितेश ब्रदर्स, can I say octroi 3,000, insurance 3,000 and advertisement 10,000, the total 16,000। अगर मितेश ब्रदर्स हम कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड लिख रहे हैं तो दूसरी एंट्री मितेश ब्रदर्स के क्रेडिट साइड में जाती है बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। दैट इज 16,000। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ही सोल्ड
he sold 10 oil engines at the rate of rupees 50,000 each for cash. अब बात कर रहे हैं कि मितेश ब्रदर्स ने कितना सेल किया है. ऑब्वियसली हम अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट की बात करते हैं तो हम सेल्स को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट साइड में करते हैं. द सेम थिंग वी विल डू ओवर हियर. हम कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में सेल रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन क्या लिखे? बाय सेल्स? नो. बाय सेल्स हम तब लिख सकते हैं जब ये सेल मैंने किया हो, बट दिस पर्टिकुलर सेल इज डन बाय मितेश ब्रदर्स. कैन आई से? मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? बाय मितेश ब्रदर. कैन आई से मितेश ब्रदर्स ने सबसे पहले 10 ऑयल इंजिन्स एट द रेट ऑफ 50,000 ईच फॉर कैश. मतलब ये कैश सेल के बारे में बात कर रहा है. ठीक है, कैश सेल कितना किया है उसने? तो 10 ऑयल इंजिन्स इनटू द रेट वुड बी 50,000 ईच. कितना आता है? 5 lakhs. Good. He sold 4 oil engines at a rate of 55,000 each to बाबूलाल on credit. Now, बाबूलाल को क्रेडिट में दे रहे हैं, हम लोग सेल कर रहे हैं. तो अगर हम क्रेडिट सेल कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पे मेंशन करेंगे उसके नीचे, क्रेडिट सेल. कितना इंजिन्स दे रहे हैं हम? 4 engines and each at rupees 55,000. The amount will be 2,20,000. Then after he purchased one oil engine for his personal use at rupees 44,000. अब यहाँ पे मितेश ब्रदर खुद अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसने एक ऑयल इंजन लिया है, तो क्या इसे भी सेल माना जाए? Yes, absolutely. This would be also be considered as sale. तो इसे भी हमें यहाँ पे लिखेंगे कि कंसाइनी ने खुद से परचेज किया हुआ है हमारे पास से, और वो एक ऑयल इंजन कितने में? 44,000 रुपीज़ में. तो हम टोटल अमाउंट को बाहर लिखेंगे 7,64,000. गुड. अच्छा, एज आई सेड अर्लियर कि जैसे ही हम सेल्स को रिकॉर्ड करेंगे हम एक बात को याद करेंगे, एंड दैट इज कमीशन. अगर आप क्वेश्चन को देखते हो तो क्वेश्चन में लिखा है कमीशन के बारे में, मितेश ब्रदर्स इज एंटाइटल्ड टू गेट 5% जनरल कमीशन एंड 2% डेल क्रेडर कमीशन. जनरल कमीशन एक ऑर्डिनरी कमीशन होता है जो टोटल सेल्स पे लगता है, एंड जो डेल क्रेडर कमीशन होता है, ये कमीशन की खासियत ये है कि ये कंसाइनर कंसाइनी को तब देता है जब वो बैड डेट्स का जो लॉस होता है वो खुद बॉर्न करना नहीं चाहता. जनरली क्रेडिट सेल जब करते हैं कंसाइनी तो अल्टीमेटली कौन होता है जो उसका रिस्क बॉर्न करता है? दैट इज़ कंसाइनर. बट टू अवॉइड दैट पर्टिकुलर लॉस, व्हाट कंसाइनर विल डू इज़, कंसाइनर एक पर्टिकुलर परसेंटेज कमीशन कंसाइनी को देते हैं और उनको कहते हैं कि बैड डेट्स का जो लॉस है वो आप बॉर्न करें, मैं अपने किताब में बैड डेट्स नहीं लिखूंगा. इसे कहा जाता है डेल क्रेडर कमीशन. सो नाउ we will see the working note of commission. So after recording the sales in the consignment account, हमने अभी सेल को रिकॉर्ड किया और जैसे हमने देखा था सम के अंदर लिखा है कि हम जनरल कमीशन दे रहे हैं और डेल क्रेडर कमीशन दे रहे हैं. बिफोर गोइंग टू दिस एस्पेक्ट आई वुड लाइक टू डिस्कस रिगार्डिंग जनरल कमीशन. जनरल कमीशन इज ऑल्सो नोन एज ऑर्डिनरी कमीशन. ये कमीशन आप उसको देते हो बिकॉज वो हमारे बिहाफ में काम कर रहा है. इसे ऑर्डिनरी कमीशन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये सर्टेन परसेंटेज फिक्स होता है, पहले से कमिटमेंट होता है. कंसाइनर कंसाइनी को करता है कि हाँ 5%, 6%. अच्छा, अब ये 6% की बात करते तो ये परसेंटेज किस पे लगेगा? ये लगेगा टोटल सेल्स पे. जितना सेल्स उसने किया है, कैश किया है या क्रेडिट किया है, टोटल सेल्स पे लगता है जनरल कमीशन, इररेस्पेक्टिव ऑफ वो कैश सेल हो या क्रेडिट सेल हो. सेकेंड, डेल क्रेडर कमीशन. नाउ we will like to talk about del creditor commission. This is very important aspect in consignment accounting. del creditor commission consignor consignee को कब देता है?
उसके पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि आपने पहले 11th-12th में बैड डेट का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। बैड डेट इज अ लॉस दैट अराइज ड्यू टू डेटर्स, दैट इज डेटर्स हमको पेमेंट जब नहीं कर पाते हैं तब बैड डेट्स का जन्म होता है अकाउंट्स के अंदर। तो मैं कह सकता हूं इसी कॉन्सेप्ट को लेके आगे लेके जाके, क्योंकि ये पूरा बिजनेस जो कंसाइनमेंट का है अल्टीमेटली रिस्क किसके ऊपर है, कंसाइनर के ऊपर है। अगर गुड्स लॉस्ट हो जाता है, गुड्स क्रेडिट में जाता है और पेमेंट नहीं भी मिलता है, अल्टीमेटली सफ़र कौन करने वाला है, मैं एज अ कंसाइनर करूँगा। सो इस मुद्दे पे आते, अगर बैड डेट्स जो है अगर मैं बॉन्ड नहीं करना चाहता, मैं बोले तो कंसाइनर, अगर कंसाइनर इसे बॉन्ड नहीं करना चाहता और ये पर्टिकुलर जो लॉस है वो कंसाइनी को कह दे कि हाँ कंसाइनी आप इसे बॉन्ड करें, हम इसे बेयर नहीं करेंगे, ये हमारा एक लॉस होना ही नहीं चाहिए, मैं ये पर्टिकुलर लॉस अपने बुक्स में रिकॉर्ड करना नहीं चाहता, तो ऑब्वियसली कंसाइनी सामने क्या कहेगा कि मुझे इसके लिए एक सर्टेन एक्स्ट्रा रिवॉर्ड दो। दिस एक्स्ट्रा रिवॉर्ड विच वी गिव टू द कंसाइनी फॉर अवॉइडिंग द बैड डेट टू बी रिकॉर्डेड इन माई बुक्स ऑफ अकाउंट, दिस पर्टिकुलर कमीशन इज नोन एज डेल क्रेडिटर कमीशन। यहां पे इस सम के अंदर आप देख रहे हैं कि इस सम के अंदर 5% ऑर्डिनरी जनरल कमीशन दिया हुआ है और 2% डेल क्रेडिटर कमीशन दिया हुआ है। अब सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ कमीशन पे जाए तो जनरल कमीशन हमेशा टोटल सेल्स पे लगता है जैसे हमने देखा है, और टोटल सेल्स हमने देखा सम के अंदर इट केम टू 7,64,000। 7,64,000 इंटू 5%, दैट इज टोटल सेल्स पे 5%, it comes to 38,200. This is the ordinary commission you will be paying to whom? To your consignee. The second aspect is del creditor commission. Sir, del creditor commission किस पे लगता है? del creditor commission हमेशा अगर सम के अंदर क्रेडिट सेल दिया हो, या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली, मीन्स अगर आपको कुछ हिंट दिया है जिससे आप क्रेडिट सेल ढूंढ सकते हो, तो डेल क्रेडिटर कमीशन हमेशा क्रेडिट सेल पे लगेगा। लेकिन मान लो कि सम के अंदर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है कि वो कौन से सेल पे करना है, क्रेडिट सेल भी नहीं दिया है, कैश सेल, कुछ बाइफर्केशन नहीं दिया है, तो हम उस टाइम पे डेल क्रेडिटर कमीशन टोटल सेल्स पे लेंगे। हियर इन दिस सम हमको पता है कि हमने क्रेडिट में सेल किया है किसको, बाबूलाल को। यू कैन सी इन दिस सम, क्वेश्चन में दिया हुआ है बाबूलाल को हम सेल कर रहे हैं कितना, 4 engines एट 55,000। कैन आई से दिस इज अ क्रेडिट सेल विच आई हैव डन, कितने रुपीस का, 2,20,000 का। सो 2,20,000 इज द अमाउंट जिसके ऊपर आपको कमीशन चार्ज करना है, डेल क्रेडिटर कमीशन कितना, 2% जो सम के अंदर दिया हुआ है। तो 2% ऑफ 2,20,000 कम्स टू 4,400। नाउ we will record this particular two amounts in the books of accounts. So as you saw from the working note number 1 of commission that general commission जो आ रहा है, जो मेरा खर्चा है, जो मैं किसको देने वाला हूँ, मितेश ब्रदर्स को, the amount is 38,200। तो डेबिट साइड में क्योंकि ये मेरा खर्चा है, टू मितेश ब्रदर्स, और ब्रैकेट में मैं लिखूंगा कमीशन। और क्योंकि मेरे पास में 2 टाइप्स ऑफ कमीशन है, मैं यहाँ पे मेंशन भी करूँगा, जनरल कमीशन। द अमाउंट इज़ 38,200 जो आपने वर्किंग नोट नंबर 2 में अभी देखा। जो डेल क्रेडिटर कमीशन है जो वर्किंग नोट नंबर 1 में आपने देखा था, दैट इज़ 4,400। द टोटल विल बी 42,600 जो मैं आउटर कॉलम में लेके जाऊंगा। अगर मैंने मितेश ब्रदर को डेबिट साइड में लिखा है कंसाइनमेंट अकाउंट में, तो दूसरी इफेक्ट मुझे मितेश ब्रदर्स अकाउंट में भी देनी पड़ेगी क्रेडिट साइड में, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, एंड द अमाउंट इज 42,600। द टोटल ऑफ जनरल कमीशन, ऑर्डिनरी कमीशन एंड द डेल क्रेडिटर कमीशन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू Babulal was declared insolvent and 90 paise in a rupee could be recovered from him as final dividend. Now listen, हमने इस सम के अंदर डेल क्रेडिटर कमीशन दिया था। अब डेल क्रेडिटर कमीशन हम किसको देते हैं, हम हमारे कंसाइनी को तब देते हैं जब हमें बैड डेट
का जो लॉस होता है वो हम बेयर नहीं करना चाहते। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि बाबूलाल को हमने क्रेडिट सेल किया हुआ है 2,20,000 रुपीज़ का टोटल, जो आप देख सकते हो 4 इंजन्स इंटू 55,000 जो लिखा हुआ है। अब इसमें से बाबूलाल का जितना भी बैड डेट हो रहा है 90% जितना ही हमें रिकवर हो रहा है, 10% नहीं हो रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये अब मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं अपनी किताब में नहीं लिखूँगा, क्योंकि मैंने 2% डेल कैडर कमीशन यहाँ पे मितेश ब्रदर्स को दिया है। सो हम यहाँ पे ये पूरे लाइन को हम यहाँ पे इग्नोर करेंगे इन दिस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल। येस, मूविंग फॉरवर्ड टू ड्यूरिंग द ईयर फायर टुक प्लेस in his godown and one oil engine was completely destroyed, against which the insurance company accepted a claim of rupees 28,000. Now friends, this is very important part. आग लगी है गोडाउन में मितेश ब्रदर्स के। नाउ ये घटना क्या नॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल लॉस है? एबनॉर्मल लॉस वो लॉस होते हैं जिसकी हम पहले से एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते, एक्सीडेंटली हुआ होता है। जैसे हम कह सकते हैं एक्सीडेंट होना, फायर होना, और ऐसे सब जितने भी इंसिडेंट्स होते हैं तो वहाँ पे एबनॉर्मल लॉस आता है पिक्चर में। एंड एबनॉर्मल लॉस को हम रिकॉर्ड करते हैं हमारे अकाउंट्स में। वी नेवर रिकॉर्ड नॉर्मल लॉस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वो ऑटोमेटिकली यूनिट्स के ऊपर बॉर्न हो जाता है, लेकिन हम एबनॉर्मल लॉस को हमारी किताब में रिकॉर्ड करते हैं। सो इन दिस सम यू हैव सीन देयर इज अ वन लाइन गिवन इन द सम रिगार्डिंग लॉस दैट हैपेंड इन द गोडाउन ऑफ मितेश ब्रदर्स। मितेश ब्रदर्स के गोडाउन के अंदर एक पर्टिकुलर लॉस होता है, और वो लॉस किस किस्म का है? एबनॉर्मल किस्म का है। कैसे पता चलता है सर कि ये एबनॉर्मल किस्म का है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लॉस। There can be normal loss and there can be abnormal loss. Normal loss ऐसे लॉस है जो आप कुछ भी करो होने ही वाले हैं, आपको पहले से पता चल जाएगा कि ये होगा ही। फॉर एग्जाम्पल सर, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में अगर फॉर एग्जाम्पल एक पेट्रोल है, पेट्रोल को हम जनरल एयर में एक्सपोज करते तो वो बहुत जल्दी हवा में उड़ जाता है, दैट इज इवोपरेट हो जाता है। कैन आई से इट हैज़ अ नॉर्मल टेंडेंसी टू गेट लॉस्ट इन एयर इफ इट इज एक्सपोज टू द एयर। दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट दैट इज जो लॉस होने ही वाला है, जैसे ऑयल निकालते हैं और थोड़ा सा ऑयल नीचे गिरी जाता है, ये होने ही वाला है, दैट इज नोन एज नॉर्मल लॉस, जिसको हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो यूनिट्स होते हैं वो इसको बेयर कर लेती है। लेकिन बात आती है एबनॉर्मल लॉस की। ये ऐसी घटना है जो हमने सोचा नहीं होता है कि होने वाला है, लेकिन हो गया हमारे साथ में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आग लग जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है, तो ये टाइप के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे बारिश आ जाता है और गुड्स पूरा भीग जाता है, दिस टाइप ऑफ एक्सीडेंट्स आर एबनॉर्मल इन नेचर। इसको हमें किताब के अंदर रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे भी इस सम के अंदर भी आप देख सकते हो कि एबनॉर्मल लॉस का पॉइंट दिया हुआ है, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि टोटल एक ऑयल का इंजन, 1 ऑयल इंजन इज बर्न्ट, और जिसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम यहाँ देखते हैं। वी हैव टू प्रिपेयर दिस टाइप ऑफ प्रोफॉर्मा फॉर दिस, जिसके अंदर 2 कॉलम्स होंगे, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। यू कैन सी, आप देख सकते हो पर्टिकुलर्स और अमाउंट है, और उसके नीचे सबसे पहले शुरुआत आप करोगे इस प्रोफॉर्मा का, आपको हमेशा ऐसे टाइप के सम्स में कॉस्ट प्राइस से शुरू करना है। जो भी गुड्स जला है या एक्सीडेंट हुआ है, आपको सबसे पहले क्या लिखना है? कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स लॉस्ट। अब बाय द फायर, अच्छा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आग कहाँ पे लगा है? ये गोडाउन में लगा है, किसके? कंसाइनी के। कैन आई से कि गुड्स यहाँ से, दैट इज जो प्लेस था कंसाइनर का, वहाँ से कंसाइनी तक पहुँच गया, मतलब जो खर्चे कंसाइनर ने किए हैं वो एक्सपेंस भी उसके अंदर होगा, और प्लस वो गुड्स किसके पास में पहुँच चुका है? कंसाइनी के पास पहुँचा है, तो कंसाइनी ने भी कुछ खर्चे किए हुए हैं, दोनों ने कुछ खर्चे किए हुए हैं गुड्स के। तो मैं कह सकता हूँ इसका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो बढ़ चुका होगा अब। तो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद दिस पर्टिकुलर प्रोफोर्मा, दैट इज सबसे पहले आप लिखोगे कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स लॉस्ट बाय फायर,
और दिया हुआ है 1 इंजन जिसकी कॉस्ट आपको पहले लाइन में लिखी हुई है सम के, दैट इज 40,000. कैन आई से 1 इंजन इंटू 40,000, द अमाउंट विल बी 40,000 विच यू विल राइट इन द लास्ट कॉलम ऑफ अमाउंट. Then after what you will do is you will add the consignor's expense as I specified earlier कि यहाँ पे दोनों के खर्चे ऐड होंगे क्योंकि ये घटना कहाँ पे घटी है, कंसाइनी के गोडाउन में. सो प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर दैट इज राजेश ट्रेडर्स. इस सम के अंदर राजेश ट्रेडर्स जो कंसाइनर है उसके गोडाउन में क्या हो रहा है, उसके कंसाइनर ने तो गुड्स बेच दिए हैं, जब बेच दिया तब ये घटना नहीं घटा है, मतलब इसका एक्सपेंस भी हमें ऐड करना है. कंसाइनर ने कौन से खर्चे किए, देखो फ्रेट एंड इंश्योरेंस जो सम के अंदर आपको मिलेगा कितने रुपीस का है, 4,800 का है. कैन आई से दिस 4,800 इज फॉर 20 ऑयल इंजिन्स. what would be the expense for one oil engine? So can I say there is a क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्रॉस इक्वेशन वाला एक फॉर्मूला यहाँ पे डेवलप हो जाता है कि जो 4,800 रुपये खर्चे किए हैं वो कितने गुड्स के लिए है, तो मैं कह सकता हूँ वो 20 ऑयल इंजिन्स के लिए है. येस और नो? तो एक ऑयल इंजिन्स के लिए कितना, तो 1 इंटू 4,800 डिवाइडेड बाई 20 आई विल गेट द अमाउंट 240. ये 240 आप बाहर के कॉलम में लिखोगे. देन कम्स प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी. अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फॉर यू ऑल स्टूडेंट्स दैट अगर मान लो कि यही घटना आग लगना या एक्सीडेंट होना ये अगर रास्ते में होता, दैट इज इन ट्रांजिट, इफ गुड्स वर इन ट्रांजिट एंड इफ सच एबनॉर्मल लॉस वुड हैव अकर्ड, देन आपका प्रोफोर्मा यहीं ख़त्म हो गया होता. लेकिन इस केस के अंदर ऐसा नहीं हो रहा है, इस केस में गोडाउन में हो रहा है, इसके लिए हम यहाँ पे कंसाइनी का खर्चा भी ऐड करेंगे. सो प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस हमको कंसाइनी बोले तो मितेश ब्रदर्स का भी इसके अंदर रिकॉर्ड करना पड़ेगा. तो देखो मितेश ब्रदर्स के अंदर ऑक्ट्रॉय इंश्योरेंस और उसके अलावा एडवर्टाइजमेंट भी दिया हुआ है, लेकिन मैंने इस कैलकुलेशन के अंदर सिर्फ ऑक्ट्रॉय और इंश्योरेंस ही लिया है, एडवर्टाइजमेंट नहीं लिया है. सर ऐसा क्यों, शुड बी द क्वेश्चन amongst you all. The reason is there are two types of expenses. One is recurring expenses and second is the non-recurring expenses. Recurring expenses मतलब जो बार बार रिकर होते हैं, जो रिकरिंग नेचर के हैं, और नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस मतलब हर बार रिपीट नहीं होते, एक बार हो गया, so that particular expense is non-recurring expenses. Can I say कि ऑक्ट्रॉय एंड इंश्योरेंस ये जो खर्चे कंसाइनी ने किए ये सिर्फ इस कंसाइनमेंट बिजनेस के लिए किया है, राइट? सो कैन आई से दैट्स अ नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस. सो स्टूडेंट्स काइंडली पे अटेंशन, whether it is a valuation of abnormal loss or whether it's a valuation of closing stock, you will always take into consideration that you have to take non-recurring expense of consignee. कंसाइनी का सिर्फ ऐसे खर्चे जो नॉन रिकरिंग नेचर के हैं उसी को आप इस प्रोफोर्मा में लेके आओगे. रीज़न बहुत सिंपल सी है, रिकरिंग खर्चे ऐसे होते हैं जो वो बार बार रिकर करता है. जैसे कि सर एग्जाम्पल दीजिए. द एग्जाम्पल इज सेल्समैन के रिलेटेड खर्चे, दैट इज सेल्स रिलेटेड एनी एक्सपेंसेस, दे ऑल आर रिकरिंग नेचर के. सेल्समैन को रखता है अगर वो, तो उसको कमीशन देना, एडवर्टाइजमेंट के खर्चे करता है, ये जो खर्चे कर रहा है ना वो रिकरिंग नेचर के हो गए. दैट्स वाई यू विल नॉट रिकॉर्ड दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट इन दिस पर्टिकुलर प्रोफोर्मा, वेदर इट इज इन वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस और इन केस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. मूविंग अहेड, कैन आई से ऑक्ट्रॉय और इंश्योरेंस दोनों मिलके 6,000 है, जो सम के अंदर आपको मिल रहा है 3,000 प्लस 3,000. वो तो 20 ऑयल इंजिन्स के लिए है, यस और नो? पूरे के पूरे 20 ऑयल इंजिन्स के लिए है. तो what would be the expense for one oil? एक ऑयल के लिए कितना? तो वंस अगेन यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इक्वेशन लग जाएगा कि अगर 20 ऑयल इंजन के लिए खर्चा हो रहा है 6,000, तो एक ऑयल इंजन के लिए कितना होगा? कैन आई से 1 इंटू 6,000 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 300. कैन आई से दिस 300 आई विल रिकॉर्ड इन
द आउटर कॉलम। नाउ अब आपको मिल जाएगा टोटल एबनॉर्मल लॉस, और इसके अंदर, इस सम के अंदर आप देख सकते हो 40,540 इज द टोटल अमाउंट दैट यू गॉट एज ए एबनॉर्मल लॉस। लेकिन सम के अंदर पढ़िए, सम के अंदर और भी कुछ लिखा है। सम में लिखा है कि आपने इंश्योरेंस लिया था और इंश्योरेंस कंपनी आपको एक्सेप्ट कर रही है कुछ क्लेम देने के लिए उसके लिए, और कितना क्लेम इंश्योरेंस कंपनी आपको देने के लिए तैयार है, बोल सकते हैं 28,000 रुपीज। कैन आई से माई नेट एबनॉर्मल लॉस कितना होगा इस बिजनेस में? माई नेट एबनॉर्मल लॉस वुड बी 12,540। एंड नाउ sir, what would be the journal entry of this particular entire aspect? The journal entry would be profit and loss account debit. You will transfer this abnormal loss to the general P&L, ऐसा मान के कि ये पूरा बिजनेस का लॉस है, इसीलिए आप इसको कहाँ ट्रांसफर कर देते हो? प्रॉफिट एंड लॉस। कहाँ से निकल जाएगा? कंसाइनमेंट में से निकल जाएगा। तो एंट्री क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 12,540, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। अगर इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया है क्लेम और क्लेम दे दिया है तो मैं यहाँ पे बैंक अकाउंट को डेबिट करूंगा। लेकिन अगर मान लो कि खाली एक्सेप्ट किया है इंश्योरेंस कंपनी ने, अभी तक मुझे मिला नहीं है लेकिन एक्सेप्ट किया है, कैन आई से वो मेरा डेटर बन जाएगा। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 28,000 टू कंसाइनमेंट अकाउंट total amount that is 40,540. As you saw the calculation of abnormal loss, we are now recording the abnormal loss in our books of accounts. Abnormal loss को रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या एंट्री पास करेंगे? जो हमने देखा प्रीवियसली कैलकुलेशन में कि नेट एबनॉर्मल लॉस जो आपका हमारा आया हुआ है 12,540 रुपीज़, हम उसे रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड ऑफ कंसाइनमेंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम वो लॉस को जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि हम वो बताते हैं कि वो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस है। इसीलिए ये जो एबनॉर्मल लॉस आया नेट 12,540, वी आर ट्रांसफरिंग दिस लॉस फ्रॉम कंसाइनमेंट टू द जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और हमें इसी लाइन में हमने जब क्वेश्चन में पढ़ा कि 28,000 का इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलेगा, जो मैं कह सकता हूँ बाय insurance company on the credit side rupees 28,000. So now we have already recorded all the aspects. The one aspect of sales is to be recorded in the debit side to consignment account, and you can write the total sales 7,64,000 over here. So now we will go with the calculation of closing stock, the valuation of closing stock, a very important aspect of consignment accounting. So now after recording all the transaction, now it's time to do the valuation of closing stock. This is the very important aspect in एंटायर कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। इस एस्पेक्ट का प्रोफॉर्मा भी सेम वैसा ही है जैसे आपने देखा था एबनॉर्मल लॉस में हमने किया था, यहाँ पे भी आपको वैसे ही करना है। लेकिन इसकी शुरुआत करें कैसे? तो सबसे पहले पर्टिकुलर्स और अमाउंट 2 कॉलम का आप एक प्रोफॉर्मा बनाओगे, जिसके अंदर सबसे पहला आपको क्या लिखना है? द कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स लेफ्ट विद द कंसाइनी। Now this is very important to understand. What do this line mean? Cost price of goods left with the consignee. मतलब सब कुछ होने के बाद में अब कंसाइनी के पास कितना गुड्स बचा है हमारा, उसे कहा जाता है गुड्स लेफ्ट विद द कंसाइनी। दैट इज द अल्टीमेट कंसाइनमेंट स्टॉक। यस और नो? दैट इज द क्लोजिंग स्टॉक। जैसे हमने ओपनिंग स्टॉक लाया था गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, वैसे ही क्लोजिंग स्टॉक भी होता है जिसको हम कंसाइनमेंट स्टॉक बोलते हैं, जिसकी अमाउंट हमें ढूंढनी है। सर ये तो सिंपल नहीं है, जितना बच गया हो उसको कॉस्ट प्राइस में ऐड कर दो। हाँ, अगर इतना सिंपल होता तो मैं कहता कि बहुत सिंपल, हम डायरेक्टली अकाउंट्स के अंदर ही लिख देते, हमें ये प्रोफॉर्मा बनाना नहीं पड़ता। लेकिन कैन आई से कि जो गुड्स हमारे पास से कंसाइनी के पास में गया है उसमें वैल्यू एडिशन हुआ है, उसका कॉस्ट बढ़ा है। कैसे? जो गुड्स यहाँ से गया है तब कंसाइनर ने खर्चे किए हैं, वो गुड्स जब कंसाइनी के पास पहुँचा है तो मैं कह सकता हूँ कि कंसाइनी के खर्चे भी
वहाँ पे ऐड हो रहे हैं, जो गुड्स वहाँ पे पड़े होंगे उसमें तो कंसाइनी ने जो खर्चे किए हैं वो भी उसके अंदर ऐड हो गए होंगे वो गुड्स के अंदर। सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट कि कितने गुड्स उसके पास में अब रहे हैं। तो ये देखने के लिए आप सबसे पहले देखिए, उसके पास में 20 इंजिन्स हमने सेंड किए थे सबसे पहले, जो आपको क्वेश्चन में मिलेंगे। उसमें से 10 इंजिन्स किसको सोल्ड कर दिया हमने कैश में सेल कर दिया है। जो आपको अकाउंट सेल की इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन के अंदर उसमें दी हुई है। और उसके बाद में 4 इंजन किसको सेल कर दिया है, बाबूलाल को किया है क्रेडिट में, जो वंस अगेन सम के अंदर अवेलेबल है। और एक इंजन परचेस कर दिया खुद कंसाइनी ने, मतलब मितेश ट्रेडर्स ने भी खुद थोड़ा परचेस किया हुआ है। और एक इंजन जो है वो लॉस हो गया बाय फायर इन दी गोडाउन। कैन आई से अल्टीमेटली 4 इंजन बचे हैं आपके पास में। दिस 4 इंजन इज नथिंग बट द यूनिट्स विच इज़ लेफ्ट, विच इज़ नोन एज कंसाइनमेंट स्टॉक। इसका वैल्यू कितना है वो हम अभी यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस कितना था, फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है सम के 40,000 रुपीज़। तो मैं कह सकता हूँ 40,000 इंटू 4 इंजिन्स कितना आएगा, 1,60,000, जो मैंने आउटर कॉलम में लिखा हुआ है। देन उसमें हम ऐड करेंगे सेम लाइक एबनॉर्मल लॉस में हमने किया था प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस, किसके, कंसाइनर के। कंसाइनर के टोटल खर्चे कितने हैं, 4,800, जिसमें फ्रेट और इंश्योरेंस है। और ये टोटल खर्चे 20 इंजन के लिए है। तो 4 इंजन के लिए कितने, तो कैन आई से वंस अगेन देयर वुड बी अ सेम मल्टीप्लिकेशन रूल एंड मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपको मिल जाएगा कि 960 खर्चे ऐसे हो रहे हैं जो 4 इंजिन्स के लिए है कंसाइनर की तरफ से। इसको आप आउटसाइड कॉलम में लेके जाओगे। एंड देन आफ्टर यू हैव टू ऐड द प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी दैट इज मितेश ब्रदर्स। वंस अगेन यहाँ पे भी वो नॉन रिकरिंग और रिकरिंग वाला ध्यान रखना है। एडवर्टाइजमेंट को आप नहीं लेके जाओगे क्योंकि वो रिकरिंग नेचर का होता है। हम सिर्फ नॉन रिकरिंग एक्सपेंस को ही लेके जाते हैं, दैट इज ऑक्ट्रॉय एंड इंश्योरेंस, दैट इज 6,000। एंड अगर ये 6,000 20 इंजिन्स के लिए है तो 4 इंजिन्स के लिए कितना, द अमाउंट कम्स टू 1,400। और ये 1,400 हम लेके जाएंगे आउटर कॉलम में। एंड रिजल्टेंट टोटल ऑफ दिस पर्टिकुलर column would be 1,62,160, that is 1,62,160 rupees total closing stock, जिसको हम रिकॉर्ड करेंगे on the credit side of consignment by consignment stock. Now as you saw, the consignment stock as per the working note number 3 came to 1,62,160 rupees. So here is the total entries of consignment accounts. Now we can total it out and we can come to the conclusion of whether we are having profit or loss from this particular business. So the total after the valuation of closing stock, now we can find out whether we have profit or loss from this particular consignment business. So we will first of all try to do a total of both the sides and let's see whether the balance comes in the debit side or credit side. So the total of credit side comes to 9,66,700. And the balance comes on the debit side. So as you all know, जैसे आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी देखा है कि जो बैलेंस आता है डेबिट साइड में, जो लास्ट रिजल्टेंट होता है वो प्रॉफिट होता है। और इस प्रॉफिट को हम कंसाइनमेंट प्रॉफिट को कहाँ लेके जाएंगे, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड द अमाउंट कम्स 95,300. सो हम कह सकते हैं कि हमें ये कंसाइनमेंट बिजनेस करने के बाद में 95,300 का प्रॉफिट हो रहा है। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि मितेश ब्रदर्स में क्या बैलेंस आता है। लेट्स चेक इट आउट। मितेश ब्रदर्स में टोटल डेबिट साइड में 7,64,000 है
and there is a balance on credit side, 3,05,400. ये बैलेंस का मतलब क्या है? दिस बैलेंस शोज दैट कि मितेश ब्रदर्स से इतना अमाउंट मुझे मिलना बाकी है या मिला है. इसके बारे में ऑलरेडी आप अगर लाइन में पढ़ते हो तो यहाँ पे ऐसा लिखा है, दैट इज़ ऑन 31/8/2017 मितेश ब्रदर्स सेंट एन अकाउंट सेल एंड अ बैंक ड्राफ्ट. मतलब बैंक ड्राफ्ट भी दिया हुआ है फॉर द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम. मतलब मैं कह सकता हूँ कि जितना अमाउंट मितेश ब्रदर्स से मिलने वाला है वो अमाउंट मुझे मिला है. तो यहाँ पे मैं लिखूँगा बाय बैंक अकाउंट. इट इज़ वेरी क्लियर दैट आई गॉट दिस मच अमाउंट फ्रॉम मितेश ब्रदर्स. नाउ टॉकिंग अबाउट द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट. इसके अंदर जो एक ही एंट्री आपकी जो ओपनिंग स्टॉक वाली है, जो आप देख सकते हो कंसाइनमेंट अकाउंट में जो फर्स्ट आपने एंट्री की हुई है, जो हम कहते हैं ओपनिंग स्टॉक है, उसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट. दैट इज़ टू फोल्ड इफेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एंट्री, दैट इज़ 8 लाख रुपीज़. और बस इस अकाउंट के अंदर यही एंट्री आती है. तो क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे जो बैलेंस आ रहा है 8 लाख का, उसका क्या होगा? सो एज यू ऑल नो कि राजेश ट्रेडर्स का खुद का भी बिजनेस है, उसका खुद का भी ट्रेडिंग अकाउंट बनता होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता होगा. सो यहाँ पे जो बैलेंस बच रहा है, मैं कह सकता हूँ ये जो गुड्स होगा वो अपने जो बिज़नेस करता होगा वहाँ से गया होगा. सो इफ़ यू रिमेंबर, हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जब गुड्स जाता है तो हम रिकॉर्ड करते हैं. द सेम थिंग इज़ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में जो अमाउंट आती है 8 लाख, ये गुड्स हमारे पास से मितेश के पास में गया. मैं कह सकता हूँ टू ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप ये एंट्री पास करोगे एट द ईयर एंड, दैट इज़ 8 लाख रुपीज़. एंड हियर दिस पर्टिकुलर सम एंड्स. एंड आपको 14 मार्क्स पूरे मिलेंगे अगर आप ये तीनों अकाउंट को इसी तरह पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट करो. थैंक यू.